In the last class, we had started with similarity. Okay, we had studied that how using different tests we can prove the triangles similar. What were the tests? AA, SAS, and SSS test. Using these three tests, we can prove the triangles similar. Okay. Lecture will be for 2 hours. AA, SAS, and SSS test. Okay. So, using these three tests, we will prove the triangle similar. And after proving the triangle similar, we write the ratios. Okay? Those ratios help us in finding the values of any side which is given in the question. ठीक है, तो ये ratios पहले similar prove करो, फिर ratios लिखो. ठीक है. Then the next thing is to find the ratio of areas of triangle. If they ask you like this, to find the ratio of area of triangle ABC or area of triangle PQR. So what do you do in this? You take any one ratio, कोई भी एक ratio आप लेते हो और उसका square करते हैं. Okay, we take any one ratio and we square the ratio. Okay, this is how I get to that. So yeah, broadly these three topics were discussed in the previous class. So we will continue from here. So open your textbooks. We had done question number 1 and question number 2. I'll do question number 4 now. 4. 3 थोड़ा pending रखो. पहले 4 करेंगे. Just a second. Yeah. So in the question number 4, the diagram is given on the next slide. The diagram is also given. This is the diagram, something like this. Two triangles are joined with each other. The common point is C, angle B and angle D. In the question, they have said that AB and DE are perpendiculars. Okay, perpendiculars. That is why these angles are 90 degrees. Okay. Then they have given values of some side, like AB is given as 16 centimeter. Okay. BC is given as 12 centimeter. And CD is given as 3 centimeter. Okay. Find the length of DE and CE. ये हमें ढूंढना है. ठीक है, DE and CE. एंड फिर एरिया का रेशियो भी ढूंढना है. ठीक है, एरिया के रेशियो के लिए सी जो एरिया का रेशियो है पूछा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी. सो वो तो सेकंड पार्ट है, लेकिन फ्रॉम देयर यू कैन सी द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल का नाम आप वहां से यूज कर सकते हो. अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा कि नाम कैसे देना है, तो यू कैन यूज दैट नेम्स फ्रॉम हियर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. First
फर्स्टली आई विल प्रूव दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है, these two triangles similar, तो कैसे लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, ठीक है। You can easily see that these two angles are same, angle B and angle D. Angle B equals angle D, which is equal to 90 degrees. Okay. अब इसके अलावा मैं और क्या इक्वल लूं? Which other angle should I take equal? Okay. I've got answers coming. ठीक है। सर वो एंगल ए और एंगल ई इक्वल होएगा। क्यों? बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स? नो, नहीं सर, सॉरी, ऑल्टरनेट नहीं, जेड का शेप का क्या था, ऑल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, बट पैरेलल तो दिया नहीं है। अच्छा, ओके सर। See, I'm getting the answers that angle C vertically opposite. Very correct. Angle C vertical opposite मैं लिखूंगा angle ACB is equal to angle DCE. Okay, नाम लिखना पड़ेगा, सिर्फ C नहीं लिख सकते. And reason will be vertically opposite angles. Okay. अब angle A और CE के बारे में, जैसे अभी यक्ष ने बताया कि that A and E are equal. But when I asked him that whether these lines are parallel, because अगर parallel होता है तो ही हम लिख सकते हैं alternate angles, ठीक है। parallel तो दिया नहीं था, तो हम alternate angles कैसे लिख सकते हैं? These angles are alternate angles, A and E, ठीक है। parallel नहीं दिया है, but फिर भी ये lines parallel ही है। ये मुझे कैसे पता चला ये lines parallel ही है? हमेशा याद रखो, क्योंकि ये दोनों angles 90 डिग्री है। These both angles are 90 degrees, ठीक है। देखो, अगर दो पैरेलल लाइंस है एंड दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों एंगल अगर सेम है ऐसे 90 डिग्रीज, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो हो गया 180। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स 180 है, मींस द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, अगर ये एंगल्स 90 और 90 दिया है तो ये ऑलरेडी ऑल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ पे ये alternate angles है already, and if alternate angles are equal 90 90 then lines are parallel, ठीक है। सिर्फ ये 90 के केस में ऐसे होता है कि उनको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि lines are parallel 90 के केस में, ठीक है। अगर दो एंगल्स 90 है एंड दे आर alternate angles, देखो ये Z ही फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊं वैसे, सो ये देखो ये Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ये भी Z ही होता है ऐसा, ओके। एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे वो बिना यूज किए भी सम सॉल्व हो सकता है, बट स्टिल यू शुड नो कहीं सम में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो रिमेंबर, ऐसे दो 90 डिग्रीज मिले तो लाइंस आर पैरेलल, ओके। चलो यहाँ पे तो मेरा काम हो गया इन दोनों से, सो आई कैन से बाय ए टेस्ट triangle ABC is similar to triangle EDC. एक्सक्यूज मी सर, अभी आपने जो अल्टरनेट एंगल्स का एक्सप्लेन किया वो आपने ए से लेके फिर बी और डी से लेके ई तक किया, फिर पर ऐसा हो सकता है बी से लेके डी तक? बी से लेके डी तक मतलब सिर्फ इतना? हाँ सर, जेड नहीं सर, पूरा जेड जेड फॉर्मेशन ऐसे ना? नो सर मैं एनोटेट करके बताऊँ? एनोटेट करके बताओ। सर यहाँ से लेके ऐसे। हाँ, तो ये जो आपने बनाया है, ये इसको इरेज करना पड़ता है। ये जो आपने बनाया है ये ए और ई का ही तो बनाया आपने। ओके सर। ये जो आपने बनाया ना ऐसे, ये यस ए सर। और ई ही बनाया है आपने, ओके सर। ये बी और डी नहीं बनाया आपने। एंगल कभी भी बीच में होता है, जो जेड आप बनाते हो ना ऐसे,
तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में एंगल होता है। ओके सर। ठीक है, अगर z ऐसे बन रहा है तो इधर और इधर एंगल है। ठीक है, स्टार्ट और एंड में एंगल नहीं होता। सर कंडीशंस कैसी रहती है, मतलब अगर पैरेलल हो तो ही वो दोनों कर सकते हैं, और वर्टिकल ऑपोजिट का रहेगा तभी पैरेलल क्यों नहीं देखते? मतलब कंडीशंस देखो यही है, if lines are parallel only then I can use alternate angles or I can use corresponding angles। ठीक है, पैरेलल है तो ही मैं ये यूज कर सकता हूँ। ओके, बट अगर दो लाइंस कुछ ऐसे है, ओके, एंड दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्रीज, तो अगर ये दो 90 डिग्रीज है तो आप उल्टा कॉन्वर्स थ्योरम कहते हैं इसे, कि अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट होता है, बट अगर ऑल्टरनेट है तो लाइंस आर पैरेलल। कॉन्वर्स मतलब अगर ये दो एंगल्स अगर 90 90 मतलब सेम है तो यू कैन कंक्लूड दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। एक्चुअली सर्कल चैप्टर में वी विल बी यूजिंग दिस, सर्कल चैप्टर में ये काफी यूज होता है, तो मैं वापस आपको एक बार बताऊंगा, ऑल्दो यहाँ पे तो चलो ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, वी हैव प्रूव द ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, नाउ आफ्टर प्रूविंग द ट्रायंगल सिमिलर आई विल राइट द रेशियोज। सो AB upon ED equals BC upon DC equals AC upon EC। ठीक है, I have written now, let us write the values। So keep the diagram in front of you। AB is given as 16, ED is not DE मतलब वो आपको नहीं दिया है, BC is given as 12 and CD is given as 3। ठीक है, तो using this two columns, two ratios, I can find the value of DE। So what will I get DE as? Three ones are 3, fours are, DE will be 4। ठीक है, ये मिल गया DE 4। DE मिल गया 4। I'll write the answer in red। ओके, अब CE ढूंढना है। ठीक है, CE तो यहाँ पे देखो EC CE सेम होता है, तो मुझे ये ढूंढना है, तो आई विल हैव टू यूज दीज टू रेशियोज नाउ। सो BC की वैल्यू थी 12, CD इज 3, AC मुझे AC नहीं पता, मुझे EC भी नहीं पता, अब दो दो अननोन वैल्यूज है। ठीक है, तो EC अगर ढूंढना है तो मुझे AC तो पता होना ही चाहिए। ओके, सो थिंक, क्या आप डायग्राम में AC को किसी तरह से फाइंड कर सकते हो? Yes, you can do that। Okay, I can see answers coming very good in the chat box, that you can find AC by Pythagoras theorem। Okay, तो yes, Pythagoras यूज करो और AC फाइंड करो इसको सॉल्व करने से पहले। So I got the value of AC as 20। ठीक है, मुझे मिल गया AC 20। I have applied Pythagoras theorem in this triangle। ठीक है, this was 16, this was 20, so 16 20 यूज करके I found AC as 20। ओके, फिर ये AC 20 होगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस रेशियोज। नाउ लेट अस सॉल्व दिस रेशियो। सो 12 upon 3 equals AC is 20 upon EC है, मैं उसको CE लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में CE यूज किया है। नाउ सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ CE। सर हम सी डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट नहीं कर सकते CE डायरेक्ट, क्योंकि सी डी की भी हाँ, साइड दी है और डी की भी साइड दी है, यस यस, अब कर सकते हो, फाइंड यस आउट कर सकते अब डायरेक्ट। कर सकते हो, यस कर सकते हो। ओके सर।
ठीक है, तो हमें सी भी मिल गया, ये भी मिल गया. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. ओके, second part of the question, area of triangle ABC upon area of triangle EDC. ओके, सो कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं. तो कौन सा रेशियो यूज करूं मैं? मैं फर्स्ट रेशियो ही ले लेते हैं, AB अपॉन DE. ED सेम, द होल स्क्वायर. ओके, AB दिया हुआ था 16, DE आपको मिला था 4, द होल स्क्वायर. Okay, so you can do the cancellation here. 4 1s are 4 4s are. So it will be 4 upon 1 the whole square. That is 16 upon 1 is your answer. सर 16/1 है तो फिर 16 चलेगा ना आंसर? नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक रेशियो है. आपको एक रेशियो पूछा है, तो रेशियो का डिनोमिनेटर होना चाहिए. ओके सर. Okay, done. These questions now 5 6 are little simpler questions, so I want to do them first so that you get confident, and then we can do the other questions. See, once you get the crux of the chapter, that how to prove the triangles similar and how to use the ratios, बस ये दो चीजें एकदम thoroughly समझ में आ गई, तो फिर आपको कैसा भी समझे आप कर सकते हो. ठीक है. Okay, next sum. Be a little quick in solving क्योंकि ज्यादा कोई calculation difficult है नहीं. Just you have to write the steps properly. Okay, question number 5. You see there is a diagram also. And arrows are made, which signifies that the two lines are parallel. Okay. There are 90 degrees also, parallel also, and some values are given like PQ is 12, QR is 9. ठीक है. अच्छा, PQ is 12 and QR is 9. So शुरू में ही let's find PR using Pythagoras theorem, because बाद में करने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, because it is a right angle triangle. We have learned this from the previous sum. Okay. So using Pythagoras theorem, let us find PQ square plus QR square equals PR square. I want you to do it on your own and tell me the answer of PR straight away. Correct, Leon. Yes, correct, Rina. Read. Correct, Ria. Okay, so everyone have mostly answer is coming. The answer should be 15. 144 plus 81 will give you 225. And when you square root, 225 is a square of 15. So you will get PRS 15. तो मुझे मिल गया PRS 15. ठीक है. Okay. So अभी I have to prove the triangles similar. ठीक है. तो अब मुझे कौन से दो triangles को similar proof करना है? Clearly यहाँ पे दिख रहा है दो triangles. One is this triangle. ठीक है. And the other one is this triangle. ये दो triangles मुझे similar proof करने हैं. ठीक है. अब ट्राइंगल्स का नाम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, अगर आपने समझो रैंडमली नाम दे दिया PQR एंड PRS, ऐसे नाम दे दिया, तो सम विल गो रॉन्ग, द रेशियोज विल कम. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है? फर्स्ट थिंग, आप नाम को क्वेश्चन में ही सर्च करो. क्या क्वेश्चन में आपको नाम दिख रहा है? सो इन द सब क्वेश्चन 2 यू कैन सी द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन, तो यूज दैट नेम्स ओनली. ओके, यूज दैट नेम्स, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा. सो आई विल राइट हियर
in triangle PQR and triangle SRP. Okay, SRP. Now I can see one this 90 degree and 90 degree is same. तो एक चीज तो मुझे सेम मिल गई, ठीक है. That angle PQR is equal to angle PRS, which is equal to 90 degrees. This is given in the question. Okay. Which other angle will I use? यहाँ पे yes, Riyan. Sir, angle SPR is equals to PRQ, so alternate angles. SPR मतलब ये वाला is equal to PRQ मतलब ये वाला. Correct. Okay. So you can see how because the lines are given parallel. ठीक है, parallel दिया है ना. सी अगर एक बात समझ लो क्वेश्चन में, if they have given parallel ना 100% वो यूज होगा सम में, बिना किसी यूज के तरीके में वो देगा ही नहीं आपको. ठीक है, और z फॉर्म होना चाहिए. दूसरे तरीके से तो z फॉर्म हो रहा नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से z फॉर्म हो रहा है. ओके, आई कैन सी द z इज फॉर्मिंग लाइक दिस. ऐसे z फॉर्म हो रहा है. ठीक है. ओके, सो लेट्स राइट. रीजंस, इज इट इम्पोर्टेंट टू राइट रीजंस? राइट, रीजन लिखना जरूरी है. सर अगर लाइंस पैरेलल नहीं दिया होता है तो हम लोग ले सकते थे ऑल्टरनेट नहीं एंगल. नहीं, यहाँ पे नहीं ले सकते थे. यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन थी नहीं. तो सर 90 डिग्री जो होना चाहिए वो सेम लाइन में होना चाहिए. हाँ, मतलब 90 डिग्री उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे 90 होना चाहिए. ओके सर. सर एंगल PQR और एंगल SPR वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का ये हो सकता है. PQR ये और ये हाँ कैसे सर. वर्टिकली ऑपोजिट है? वर्टिकली ऑपोजिट तो ऐसा होता है. दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट. ऐसा क्रॉस बनता है वर्टिकली ऑपोजिट में. तो यहाँ पे तो कोई क्रॉस नहीं बना. ओके, तो आई हैव प्रूव्ड द ट्रायंगल सिमिलर बाय AA टेस्ट. ठीक है, बाय AA टेस्ट ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल SRP. ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया. अब सिमिलर होने के बाद आई विल राइट रेशियोज. ठीक है, मैं यहीं पे करता हूँ बिकॉज द डायग्राम शुड बी विजिबल. ओके, आगे वाला पार्ट. सो आई विल राइट रेशियोज. PQ अपॉन SR equals, is this color visible? थोड़ा सा लाइट कलर है ये. QR upon RP equals, RP PR is same, PR upon SP. ठीक है, let us put the values. PQ is given as 12. दो चीजें फाइंड करनी है मुझे, PR and RS. ओके, QR is given as 9. RP हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 15. SP is not known and SR is not known. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. You first take these two ratios and find SR. Then you take these two ratios and find SP. Come on, do that.
I will erase this proving part. ये हो गया है. So you are getting SR as 20 and you will get SP as 25. ठीक है? You should get these two values as your answer. The first part of the question is done now. Okay. Second part. So area of triangle PQR upon the area of triangle SRP. ठीक है? तो कोई भी एक रेशियो लेना है. ठीक है? See, this ratio seems easy to take, ये बीच वाला, because दोनों values इसकी दिख रही है यहाँ पे, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ इस बार. QR upon RP the whole square. QR is 9. 9 upon 15. So cancellation, let's do the cancellation. 3 3s are, 3 5s are. And then let's take the square. So 3 square is 9, 5 square is 25. This is my answer. Sir, Yes. sir, if we cancel after taking the square of 9 and 15, we will it's get okay. right. हाँ, yes, it's okay. But भूलना नहीं, cancel करना पड़ेगा. And the numbers will be big, so cancellation 2 बार करना पड़ेगा. Okay, sir. Because समझो, देखो, जब आपने स्क्वायर ले लिया अगर, तो आपको आएगा 81 upon 225. ठीक है? तो cancellation भी 2 बार होगा. 327 एंड यहाँ पे आपको आएगा आई गेस 375 देन 39 325 क्योंकि जो कैंसिल होने वाला फैक्टर था वो भी स्क्वायर हो गया, तो 2 बार कैंसिलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. Okay, sir. Okay. अच्छा, there is a valid question now here in the chat box that what if the names, जैसे समझो अगर पार्ट 2 होता ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको बोलते सम सॉल्व करने के लिए, तो आप ट्राइंगल के नाम कैसे लेते? अभी ट्राइंगल के वैसे तो मैंने आपको बताया है कि 99% सम्स में ट्राइंगल का नाम क्वेश्चन में ही देंगे, ठीक है, बट अगर नहीं दिया तो बाय चांस, बैड लक, तो व्हाट टू डू? पहले रेज दिस, आपको बताता हूँ कि क्या है, क्या करना है. आप ध्यान देना, अभी अच्छे से ध्यान देना एकदम, ठीक है. सो आपको ट्राइंगल तो पता है कौन से है, एक ये है और एक ये वाला ट्राइंगल है. यू नो द ट्राइंगल्स वेरी वेल, ठीक है. तो आप पहले एक ट्राइंगल का नाम लिख दो PQR, ओके, और दूसरे का नाम उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है. अब कैसे लिखेंगे? तो आपको क्लियरली दिख रहा है एंगल Q और एंगल R सेम है, 90 90, ठीक है. तो फर्स्ट ट्राइंगल में Q है यहाँ पे, तो सेकेंड ट्राइंगल का R यहाँ पे होगा इसके नीचे, बिकॉज वो दोनों सेम है. बात समझ में आ रही है? दूसरा आपको कौन सा एंगल सेम पता है? यू नो दैट ये फर्स्ट ट्राइंगल में दिस R एंड सेकेंड ट्राइंगल में दिस अल्फाबेट P, दे बोथ आर सेम, ओके. तो इसका R जो है फर्स्ट ट्राइंगल का, उसमें यहाँ पे P आएगा, ठीक है, और बचा गया थर्ड अल्फाबेट S, तो इट विल कम हियर. सो ये है आपके ट्राइंगल्स PQR एंड SRP, ओके. रिमेंबर वन थिंग, मैंने कहा है कि 99% सम में दिया हुआ होगा, बट फॉर दैट रिमेनिंग 1% मैंने आपको टेक्निक बताई है, और ये टेक्निक किसके बेसिस पे है? दैट एंगल शुड बी सेम. ये जो Q एंगल है ये R से सेम होना चाहिए, तभी तो ट्राइंगल सिमिलर है. ये R जो है ये उस ट्राइंगल के P से सेम होना चाहिए, तभी तो ट्राइंगल सेम है, ओके. आई होप ये समझ में आ रहा है. 2 एंगल्स इनफ होते हैं, थर्ड अल्फाबेट ऑटोमेटिक प्लेस हो जाता है, ठीक है. Sir, I didn't understand the size thing, ratio. What I was a ratios? bit confused. Which ratios? Sir, AB, PQ, PR, PQ, how to find, sir? Matlab, how to get it? Did you write the ratios? Yes, sir. But I'm getting confused how to find the sides. Tell me the ratios.
So ratios of what? Three Sir, ratios. only Three, two sides are given, PQ and QR, sir. I found the third side by Pythagoras theorem 15. Then what to do, sir? did you write the ratios? Triangle PQR is similar to SRP. Did you write the ratios like this? Yes, sir. Did you put values there? Did you put the values? Sir, in this both case, the PR and RP's value will be the same. That's what I want to ask mainly. It is same, na? It is same. It's a common side, that's why. Why to get confused here? Common side है, दो बार आएगा. Sir, but in the start you said in similarities there will no sides will be equal. So how? Arey, that is different. That what I said, that corresponding sides may not be equal. It is never equal. In fact, corresponding sides means this PQ corresponds to SR. These two sides are not equal. Here it is a common side, so it can be equal. Yes. Corresponding sides का मतलब क्या होता है? First side का ये पहला side, ये PQ, और second triangle का ये पहली side SR. Are they equal? PQ and SR? They are no way equal. You check No. QR and RP, corresponding sides. Are they equal? QR and RP? They are not equal. No, sir. Like this, corresponding sides are not equal. There can be a common side. We cannot use this common side as a parameter in proving the triangle similar. That we cannot do. Okay, sir. Thank you. Chalo, next sum. The sixth sum, in fact, I think you can do it on your own. Abhi ka abhi solve kar lo. Very simple sum. कुछ नहीं समझे तो मुझे पूछो, but try करो. Try to do it. You can see. If you want, I'll mark the triangles for you. एक ये triangle है, and एक बड़ा वाला triangle. ठीक है? These are the two triangles. The names of the triangles are also given in the question. First part is to prove them. Sides are also given. In the two triangles given, I have one angle same, 90-90. रीना, मैंने जस्ट नाउ बताया था कि कॉमन साइड को कभी एज अ पैरामीटर नहीं ले सकते. कॉमन एंगल होता है, कॉमन साइड नहीं होता है. जब हम SAS टेस्ट पढ़ते हैं सिमिलैरिटी में, तो दिस S स्टैंड्स फॉर रेशियो. समझते हो? हम S है होता है तो एक रेशियो फाइंड करते हैं, दूसरे S के लिए भी एक और रेशियो फाइंड करते हैं. द रेशियोज आर सेम. ओके, साइड्स सेम होने से कुछ नहीं होता. अच्छा, the value of BC is not printed in your textbook. तो BC is 36. किसी के टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड नहीं है तो BC 36 है, और आगे लिखा है फाइंड द लेंथ्स ऑफ AB एंड AC. BC is 36. Find the length of AB and AC. एंगल कॉमन हो सकता है, साइड कॉमन नहीं हो सकती है. अच्छा, यहाँ पे एंगल कॉमन दिख रहा है. सी, दिस इज वन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, एंड ये पूरा एक ट्राइंगल है. So this angle here, angle A, is part of both the triangles. Angle A is a common angle. Yes, Rayan, what is your doubt? I'm not able to understand. Okay, once the triangles are proved similar, you write the ratios.
Write the ratios. AB is not known. BC is 36. PQ is 12. AC not known. AQ. AQ also is not known. So can we find this using Pythagoras? Let us check. BC is given as 36. PQ is 12. मतलब this is 12. Okay. AP is 5. So see, here I can use Pythagoras. यहाँ पे देखो मैं Pythagoras कर सकता हूँ इस triangle में. And I can find AQ. So use Pythagoras here. Using Pythagoras theorem in triangle APQ. So AP square plus PQ square equals AQ square. AP is 5 square, PQ is 12 square equals AP square. तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, you will get AQ as 13. ठीक है, AQ मिल जाएगा 13. So this 13 you can use it in the ratio. कौन से रेशियो में? ये वाले रेशियो में. See here, in the place of AQ, I have written 13. Now solve the ratios one by one and find the value of AB and AC. So when you will solve it, you should get the answer of AB as 15. ठीक है, फिर इसको solve करो, you will get AC as 39. Centimeters भी लिखना, unit भी लिखना. Unit is important. Okay, you should get this. Any doubts, you can raise your hand. Now we have to find the area of the triangles. Ratio of the areas of the triangle. So ratio of areas of triangle क्या होता है? Square of the ratio of the corresponding sides. Area of triangle APQ upon area of triangle ABC equals, first ratio ले लेता हूं मैं. अच्छा, see here pay attention, they have given APQ first and ABC second. मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल नीचे दिया है और छोटा वाला ऊपर दिया है, तो आपको भी रेशियो को चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से. AP ऊपर आएगा एंड AB नीचे है. ओके, सो बी केयरफुल विद दैट. अगर आपने AB अपॉन AP लिख दिया, गलत हो जाएगा सब. ठीक है, व्हाट इज AP? AP is 5 and what is AB? AB is 15. घाई नहीं करना है सब में, अच्छे से पढ़ना है सबको. So when you cancel, it will become 1 upon 3 the whole square. That is 1 upon 9. Your answer is 1 upon 9. Always make a habit of highlighting your answers. Always remember, it is very important. Done, all of you?
Next, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. Whatever unit is given in the question, you have to write that same unit, centimeter, meter, whatever it is. If the unit is not given, then you have to write units, 5 units ऐसा. ठीक है. Now let's come to question number 3. Question number 3 में क्या है, थोड़ा सा डायग्राम जो है छोटा सा है and too many triangles are there, so you have to be a little careful here. This is the diagram. You don't need to draw the diagram because we are not making any changes here in the diagram. So आपको copy करने की जरूरत नहीं है. You just have to understand the question. ठीक है. Now one ratio is given, AC upon CE. This ratio is given is 2/3. So AC इधर है, CE इधर है. This is the ratio. Okay. Just read the question. Read the question and try to see what the triangles are. Okay, see, ratio is given. Now, firstly, what we have to find AB and EF. क्या ढूंढना है मुझे? Find AB and EF. Okay. Where is AB? AB is here. ठीक है, इधर है AB और EF कहाँ पे है? EF है यहाँ पे. ठीक है. मुझे इंफॉर्मेशन क्या दी है? इंफॉर्मेशन दी है AE की. This side is given as information. ठीक है, तो अब मैं कैसे ढूंढूं? How should I find? तो first let's focus on AB. AB को कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आप अगर ध्यान से देखो, if you observe this triangle, see जो आपको values दी है AC and CE, उसको आपको यूज करना पड़ेगा सम में. ठीक है. So if you observe this triangle which I have highlighted here, okay, ये जो बड़ा ट्राइंगल है और इसके बीच में ये लाइन है CD. तो अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, these are forming two triangles like this. Can you prove these two triangles similar? Their lines are parallel. Lines are given parallel. Okay. So उल्टा दिया. देखो अभी तक हम जो कर रहे थे ना वो ऐसा था, सीधा होता था. अब ये उल्टे है ट्राइंगल्स. ठीक है. ऐसा होते रहेगा, समझ आएंगे ऐसे. Okay. So can we prove the triangle similar? Sir, how the upper part is a triangle, sir? It's not a triangle. This is one triangle. Okay, sir. Okay. And this is one triangle. So you are taking a big one and the small one, right? Yes. Okay, sir. I got confused. So these two triangles, we are taking these two triangles. Okay. अब इन दोनों triangles में, ठीक है, आप देख सकते हो कि E is the common angle. I will write here. In triangle, I'll give the names CED and AEB. Angle E is common. ठीक है. और फिर आप
और क्या ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने पढ़ा है ये ऐसा ट्राइंगल जब भी आता है लाइक दिस, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन बोथ साइड्स। कोई भी एक ले लो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, मैं ट्राइंगल्स को वापस हाईलाइट करता हूँ। दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल। अच्छा, इन द क्वेश्चन दे हैव यूज्ड डिफरेंट नेम्स। उन्होंने क्या नाम यूज किया है, ECD और EAB। ठीक है, वो भी दोनों नाम सही ही है, अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। तो यूज यू कैन यूज दीज नेम्स आल्सो जो मैंने लिखा है, या यू कैन यूज द नेम्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन। वो भी नेम यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बेटर होगा क्वेश्चन वाला ही नाम ले लेते हैं। So triangle ECD and triangle EAB. Angle E is common and corresponding angles na. So ECD is equal to angle EAB. Okay, reason is corresponding angles. ठीक है, Sir, in this question, DCE can be 90 degree. what DCE can be 90 degree because line is given parallel ना. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर पैरेलल है तो 90 होगा, ऐसा नहीं होता। तो See, क्यों मतलब? क्यों, देखो, जब मैंने जब बताया था ना कि ये दोनों 90 है तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, वो इसलिए नहीं था कि द वैल्यू इज 90, वो इसलिए था कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। एंगल सेम है मींस इसको हम कह सकते हैं दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल सेम होने की वजह से लाइंस वर पैरेलल। ओके, और यहाँ पे अगर समझो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, यहाँ पे नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स इधर ही बनेगा, सिर्फ एक इधर ऐसे। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो लाइंस आर पैरेलल। ओके, 90 हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर समझो 60-60 भी होता, एंगल सेम है ना तो लाइंस आर पैरेलल, वैसा। Okay. बट यहाँ पे तो पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो पैरेलल के वजह से 90 है ये कंक्लूड नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकती है, एंगल की वैल्यूज। ओके, और यहाँ पे तो हमें दिख भी रहा है, आप अगर थोड़ा देखो तो ये स्लांट है लाइन, ये जो लाइन है ऐसी ये स्लांट है, तो दिस कैन नॉट बी 90, दिस ऑल ग्रेटर देन 90, तो वो भी नहीं है, और 90 ऐसे नहीं होता। ओके, ठीक है, तो ए टेस्ट से आई हैव प्रूव द ट्राइंगल्स सिमिलर। अब से प्रूव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टू राइट द रेशियोज। तो जो रेशियो लिख देते हैं, EC अपॉन EA इक्वल्स CD अपॉन AB। देखो, अभी थर्ड रेशियो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ED अपॉन EB है ये थर्ड रेशियो। ठीक है, बट अगर आपने अगर ध्यान दिया है क्वेश्चन पे, मतलब आपको थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि ये ED और ये जो EB ये पूरी साइड है, इसका यूज ही नहीं है, कोई वैल्यूज ही नहीं है इनकी, और इनको फाइंड भी नहीं करना है। तो यू कैन इवन इग्नोर दिस रेशियो, आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलता है, सिर्फ जो काम का रेशियो है वो आपने लिखा है। ओके, ये ED और BE का जो रेशियो था इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। ओके, वी कैन फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो EC इज गिवन एज 3 एंड EA मतलब ये पूरा हो गया, EA मींस ओके दैट इज गिवन एज 5। देन CD की वैल्यू हमें नहीं दी है। ओके, तो और क्या दिया है, अच्छा CD 6 दिया हुआ है, यस यस यस, सॉरी, CD is given 6, we didn't read that, and AB is not given. Okay, so if you solve this you will get AB as 10 centimeter. Okay, first part understood everyone? I got AB as 10 centimeter.
Sir, I did not understand the last part where you put the ratios. I mean, you wrote the ratios and then after that you put the numbers. So 3/5, how did you get 3/5? See the diagram. What is EC? EC is this. Yes. Then what is EA? EA, ये. Is the whole thing. Okay, then 5. Okay. Yes, sir, I got it. Okay. ठीक है, ये हो गया सबका. ठीक है. We have got AB as 10 centimeters. ठीक है. Second thing I have to find is EF. EF मतलब ये. अब EF कोई भी एंगल से, जो ट्राइंगल हमने करंटली सॉल्व किया था उसमें तो है ही नहीं EF, तो उन ट्राइंगल के रेशियो से EF मिल ही नहीं सकता. तो EF के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कोई और ट्राइंगल लेने पड़ेंगे. ठीक है. तो कैन एनीवन टेल मी व्हिच ट्राइंगल विल आई टेक फॉर EF फाइंड करने के लिए? पहले तो मैं इस ट्राइंगल को हटा देता हूँ, इनके हाईलाइट. ठीक है, बिकॉज अभी इनका काम पूरा हो चुका है. ओके. यस भैया. So we can take ACD and AEF. करेक्ट. सो आई कैन टेक ACD ये वाला छोटा ट्राइंगल एंड AEF ये वाला ट्राइंगल. ओके, दीज टू ट्राइंगल, क्योंकि उसमें ये रेशियोज भी आ रहे हैं 2 और 3 वाले. ठीक है. एंड ये EF भी आ रहा है. दोनों चीज आनी चाहिए ना, बिकॉज उसकी वैल्यूज हमें पता है. ओके, समझ में आ रहा है आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? सी, दिस वाज अ क्वेश्चन वेयर द नेम ऑफ द ट्राइंगल वाज नॉट गिवन फॉर EF. नाम नहीं दिया था, आपको सोचना था. ठीक है. तो स्लोली यू विल अंडरस्टैंड. धीरे धीरे जैसे चैप्टर करेंगे आप खुद रियलाइज करोगे कि कब कौन सा ट्राइंगल लेना है. ठीक है. देखो, मैंने वापस एक बार बताता हूँ. EF आपको कंसीडर करना है, सो वी टुक दिस ट्राइंगल एंड दिस इज द स्मॉलर ट्राइंगल व्हिच वी टुक. ओके. नाउ प्रूविंग इज वेरी सिंपल. ये ट्राइंगल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लाइंस आर गिवन पैरेलल आल्सो. ठीक है. तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दिस विल बी द कॉमन एंगल. So write it down, write the statements first like this in triangle ACD. ठीक है. अब देखो नाम कैसे देना है. अंडरस्टैंड, जो सीक्वेंस में नाम दे रहा हूं उसको मेंटेन रखो. आपने अगर ACD ऐसे दिया है इन दिस सीक्वेंस, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो बड़े ट्राइंगल का नाम भी ऐसे ही दो. ठीक है. इन दिस डायरेक्शन AEF. ओके, इसको AEC दिया, इसको AEF दिया. दोनों का डायरेक्शन सेम रखो तो नाम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा. Let me write the names ACD and triangle AEF. Okay, angle A is common and angle ACD is equal to angle AEF. Reason being corresponding angles. I'll write in short form corresponding angles. So therefore ACD is similar to AEF. एक बार सिमिलर मिल गया. अब रेशियोज लिखो, वैल्यूज पुट करो एंड फाइंड द आंसर. Sir, how did you identify the triangle? Just now I said that you need to find the value of side EF. Yes, sir. So EF कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? EF is the part of this triangle, your bigger triangle. So can I ask one thing? Hmm. Sir, we can take triangle ABD and DEF also. But then you will not be using 2 and 3 ratio which is given in the question. So it should be included, sir. Only then we can find. And otherwise, without this information in these two triangles ADB and EDF, आपको क्या पता है? सिर्फ ये 10 सेंटीमीटर और कुछ भी नहीं. So with one value you cannot find the other values. है ना? Sir, CD. Okay, sir. CD उसका पार्ट ही नहीं है ना इन दोनों ट्राइंगल्स का. Okay, sir. Understood. But you can prove these two triangles similar. अगर प्रूफ करने के लिए पूछा होता तो सिमिलर प्रूफ हो जाता, बट उससे EF नहीं मिलता. So now let's write the ratios. यहाँ पे फटाफट AC upon AE, CD upon EF. इतना ही लिखता हूँ. AD and AF का जरूरत नहीं है. So values क्या है? AC is how much? AC is 2, AE is 5, CD is 6
and AF, EF, we don't know. So cross multiply, you will get EF as 15 centimeters. Second part you can do it on your own. Second part easy है, सिर्फ ratio find करना है triangles के area का. So you take any ratio from here and square it. ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EAB. I hope you got it. You will take it EC upon EA the whole square. That will be 3 upon 5 the whole square. That is 9 upon 25. This will be your answer. Yes, done all of you? Okay, let's do the next sum. Question number 7. 7. Again, diagram simpler तो नहीं है, but you can solve it. It's a good problem नहीं. There is a parallelogram ABCD given. Parallelogram means opposite sides are parallel. They have written all the values. Then they have described it that BC is extended to Z. Means ये जो BC है, ठीक है, इसको extend किया है और Z point बनाया, ठीक है, and then A को Z से connect किया. So this is how you are getting the diagrams. Okay, diagram दिया हुआ है तो description is okay, ठीक है. अच्छा, there is one information given in the end of the question that 3dx equals xb. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. 3dx equals xb. ठीक है, इसको यूज कैसे करना है? ब्रिंग इट इन रेशियो फॉर्म. ऐसे dx अपॉन xb इक्वल्स 1/3. रेशियो के फॉर्म में लाओ. ये 3 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, ये xb जो है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा. रेशियो के फॉर्म में लाया मैंने इसको, इस इंफॉर्मेशन को. आई बॉट इट इन रेशियो फॉर्म. समझ रहा है ना? ये ऐसे था तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यू विल गेट dx इक्वल टू xb अपॉन 3. और फिर इस xb को यहाँ पे नीचे लाओ. सो dx अपॉन xb इज 1/3. रेशियो में बनाया मैंने. ओके, अब बिकॉज हमें रेशियोज चाहिए, वी विल बी यूजिंग रेशियोज. ओके, तो लेट्स पुट डाउन दैट रेशियो इन द डायग्राम आल्सो. तो ये दिया हुआ है 1 एंड xb इज 3. ओके, ये रेशियो दिया है इसका और इसका. ठीक है,
Now, which triangles to prove similar? AXD and ZXB. These two triangles are to be proved similar. Okay. समझ में आया ना? देखो ये और ये ट्राइंगल, दिस एंड दिस. ओके, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम है ये, कुछ ऐसे. एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल. सी, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है दिस एंड दिस इज पैरेलल, मतलब AB AD एंड BC इज पैरेलल. तो यू कैन अज्यूम दैट BC को आप BZ भी पैरेलल ही होता है. ओके, ये पूरी लाइन पैरेलल है इसको. रिमेंबर दिस. ठीक है, अगर ऐसे एक लाइन पैरेलल है, these two lines are parallel. ओके, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटेंडेड पार्ट भी पैरेलल ही होगा. ओके, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वो भी पैरेलल ही होगा. ठीक है. So let us name the triangles in triangle AXD and triangles ZXB. Okay, X, यहाँ पे कौन से एंगल्स लूंगा मैं? This and this angle is vertically opposite angle. X, ठीक है, कॉमन नहीं. This is not common. These are vertically opposite angles. So angle AXB is equal to angle ZXB. Reason is vertically opposite angle. Okay. And then you can take alternate angles, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ऐसा एक Z बना दो. ठीक है, Z बना दो. So this angle and this angle will be same. ये इतना एंगल और ये इतना एंगल. These two will be same. हाँ, yes, this is AXD है ये. ओके, सो ऑल्टरनेट एंगल्स मिल गए. यस, यू कैन टेक A एंड Z ऑल्सो. आप इसको भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी Z फॉर्म कर रहा है. नो प्रॉब्लम विद दैट. आप ऐसा Z भी ले सकते हो. ठीक है, तो आपने ले लिया जो भी आपको लेना था. लेट्स से मैंने लिया D और B. सो एंगल D ADB इज इक्वल टू एंगल DBZ. Alternate angles. ठीक है, so by AA test, triangles are similar. Triangles AXD is similar to triangle ZXB. Okay. ये हो गया, first part is done. This was the first part. Now second part, I hope all of you are with me. धीरे धीरे ही चल रहे हैं हम. ठीक है, कोई फास्ट नहीं चल रहे हम. सो सेकेंड पार्ट यू हैव टू जस्ट नेम, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम बताने बोला है उन्होंने कि ये जो DXY है ये कौन से ट्राइंगल से सिमिलर है. DXY. ठीक है, एक ही आंसर है इसका, दो आंसर नहीं है. DXY किससे सिमिलर है? DXY सिमिलर है AXB से. ठीक है, DXY इज सिमिलर विथ AXB. See how the triangles are made. और वो भी क्यों है? बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. ठीक है, तो ऐसे Z बन जाता है. ये ऐसे ट्राइंगल्स है. These are triangles like this. समझ रहा है? तो आंसर विल बी AXB. So for the second part answer will be AXB. ओके. अब कुछ लोग मुझे आंसर दे रहे हैं कि सर दीज टू ट्राइंगल्स DXY एंड DBC, ये वाला ट्राइंगल, दीज टू आर नॉट सिमिलर. व्हाई नॉट सिमिलर? इज दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल टू ईच अदर? अगर ये पैरेलल नहीं है तो आप इनको सिमिलर नहीं लिख सकते. ओके, इसीलिए ये दो ट्राइंगल्स आप नहीं लिख सकते, पैरेलल नहीं है लाइंस. सर कोई प्रूफ देंगे, मतलब ऐसा कि अल्टरनेट है? क्या क्या कैसा प्रूफ? मतलब प्रूफ देंगे क्या कोई सर के क्यों है, मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे लिख के? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लिखना. उन्होंने सिर्फ नाम पूछा है, देयर स्पेसिफिक नेम अ ट्रायंगल, बस. तो हमें नेम ही लिखना है, हमें कुछ प्रूफ नहीं करना. ठीक है, सेकंड पार्ट इज डन. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल AXD एंड ZXB. तो ठीक है, हमें पता है रेशियो कैसे लिखते हैं.
for the third part of the question, area of triangle AXD upon area of triangle ZXB is सी अभी दो साइड्स लेनी है ना, तो AX और ZX अगर आप लोगे तो आपको उनकी वैल्यूज ही नहीं पता है, तो AX ZX लेके फायदा नहीं है। नेक्स्ट टू साइड्स क्या है, XD एंड XB, XD और XB पता है, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो लेट अस राइट XD upon XB the whole square. Okay, what is XD? XD is 1 और XB क्या है, XB is 3 the whole square. So answer is 1 upon 9. Okay. See, similarity is a interesting chapter, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए you may not like it, but this is what actual maths is about, that when you have to apply your brains. कुछ चैप्टर्स ऐसे है, बैंकिंग, लीनियर, जहाँ पे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, दैट इज नॉट मैथ्स पर से। थोड़ा तो दिमाग आपको लगाना चाहिए, ओनली देन योर लॉजिक विल इम्प्रूव, योर इंटेलेक्ट विल इम्प्रूव, व्हिच इज द पर्पस ऑफ मैथ्स। ठीक है, द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो डन, लेट्स सी द फोर्थ पार्ट। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। Sub question 4, AB and AD is given, find the length of DZ and DY, ठीक है, DZ, अब BZ मतलब ये वाला, तो ये डेफिनेटली इस ट्राइंगल का पार्ट है BZ, ठीक है। तो लेट अस इस ट्राइंगल को मैं वापस लिख देता हूँ, AXD is similar to ZXB. Okay, let us write the ratio, AX upon ZX equals XD upon XB equals AD upon BZ. Let us write the values, AX और ZX की तो वैल्यू पता ही नहीं है, XD और XB पता है 1 upon 3 and AD is given as 4 in the question, BZ is not given. ठीक है, to solve this you will get BZ as 12 centimeter. ठीक है, मैंने BZ फाइंड किया, BZ। Now I also have to find DY. Yes, done all of you? Done? BZ find कर लिया? Sir, how did you get AD? Given in the question. Sir, where? Read the Oh. sub question 4. अच्छा, so अब dy फाइंड करना है, dy। So dy आपको पता है, अभी हमने नाम भी लिखा था ट्राइंगल का, इस पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स है, ठीक है। So write the names of these two triangles. DXY is similar to triangle. What should be the name of the triangle? ये जो DXY है, ये जो जिस ट्राइंगल से सिमिलर है, उसका नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है, you have to think now. ध्यान से देखना, कुछ डायरेक्टली रैंडमली आंसर मत दो घाई करके। Think before answering. All of those who have given me the answer is wrong. सिर्फ एक जन ने राइट दिया है, I guess अब्बास अली। आपको बोल रहा हूँ कि सोच के बताओ DXY किससे सिमिलर है। Arya wrong. Manthan wrong. Now Atharva, Ishan have given the correct answer. See, आप लोग घाई कर रहे हो, आप लोग मुझे आंसर दे रहे हो AXB, ठीक है। Most of you have given me the answer as AXB. So, did you think
while saying AXB, X और X तो एंगल सेम है, क्या एंगल D और एंगल A सेम है? क्या एंगल D और C, बाकी मुझे तो और भी आंसर आ रहे हैं, DBC ये सब तो बिल्कुल ही गलत है, BZA ये सब तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि DBC तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, और कोई ट्राइंगल सिमिलर होगा ही नहीं। DXY से B पार्ट में देखा था, ओनली AXB इज सिमिलर टू DXY, ठीक है, बट ये AXB का नाम आप कैसे दोगे, दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो आप सबने मुझे AXB नाम बताया, बट AXB नाम गलत होगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज इफ यू सी द एंगल्स विच आर सेम, ये X सेम है यहाँ से, दिस एंगल D विल बी सिमिलर टू एंगल B, इक्वल टू एंगल B, बिकॉज Z ऐसे फॉर्म होगा। आर यू गेटिंग योर मिस्टेक? समझ में आ रहा है? आप जिन लोगों ने मुझे AXB आंसर बोला था, आंसर AXB नहीं हो सकता ना, बिकॉज एंगल D जो है वो एंगल B से सेम है। You have to write BXA here as the name. D और B सेम है, X और X सेम है, Y और A सेम है। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें कि मैंने नाम क्यों दिया है ऐसा? मैंने क्लियरली बताया था, एंगल्स शुड बी सेम, उस हिसाब से नाम देना है, ठीक है। See, I'll explain once again. ये जो दो ट्राइंगल्स है यहाँ पे, I'll highlight in green. This is one triangle and this is one triangle, correct? So in these two triangles, which angles are same? So first a Z will be formed like this. ऐसा एक Z फॉर्म हो सकता है, या फिर ऐसा एक Z फॉर्म हो सकता है, like this. तो अगर Z ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो this angle and this angle is same. That means D and B is same. समझ रहे हो? In this triangle and in this triangle. Okay. So अब I hope आपको समझ में आ गया है कि why I have taken BXA. Now you write the ratios. So depending upon what is given to you in the question, find the answer. dy आपको find करना है, ठीक है। AB is given as 6, xy xy and xa तो दिया ही नहीं है, तो forget it. dx and xb, yes it is given 1/3. So when I cross multiply, I will get dy as 2 centimeter. Done all of you? This was a bit lengthy question. So what I'll do is अब 2-3 question छोटे-छोटे करते हैं. Okay, I'll clear the screen. Question number 8. Very, very easy question.
they have told to prove that triangle PQR is equal to, sorry, similar to in PQR and triangle TSR. ठीक है, बहुत इजीली आप प्रूव कर सकते हो. You can draw a Z like this. See this Z. And you can also say that these angles are vertically opposite. Okay, so let us write angle PRQ is equal to angle SRT, vertically opposite angle, and angle Q is equal to angle S, alternate angles. Okay, so therefore by AA test, triangle PQR is similar to triangle TSA. After writing the similar triangles, I will write the ratios. Sorry, this is not TSA, मैंने गलती से TSA लिख दिया. TSR है ये, sorry. R है ना, value is R. Sorry. This is R. मैंने गलती से इसको A लिख दिया. TSR. Now put the values. PQ is given as, PQ is not given. So find the value of X if PQ is X plus 2. PQ दिया है X plus 2. And ST is given as 2X plus 1. QR and SA are not given at all. PR दिया हुआ है 4 and RT is given as 6. Cross multiply and find the value of X. You will get the value of X as 4. Sum is done. Okay, now see here. In this triangle, they have given few values, and the first question is, what is the measure of angle ABC? उन्होंने पूछा है इस ABC का measure क्या है?
इस एंगल ABC की वैल्यू क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, इसकी वैल्यू पूछी है ABC की, तो ये अब ये कैसे मिल सकता है, ऐसा तो कुछ सीखा नहीं था हमने। Here it is a common question. If you see carefully, in this triangle ABC, all three sides are given. कुछ स्पेशल दिख रहा है आपको in these numbers? If you see carefully, they are Pythagoras triplet. Pythagoras triplet. See, AB square plus BC square equals AC square. इसको करके देखो, you will get 9 square plus 12 square equals 15 square. ठीक है, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। 144 plus 81 equals 225. Both values are equal. ठीक है, मतलब आपने पाइथागोरस को प्रूफ कर लिया, और पाइथागोरस तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होता है। सी 9, 12 and 15, दिस इज अ ट्रिपलेट। पाइथागोरस सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट बाय कॉन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम triangle ABC is a right angle triangle, and therefore angle ABC is 90 degrees. ऐसे करना है ये, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बट ये जनरल क्वेश्चन था। First part is done. Now the second part. I have to prove that triangle APB and triangle ABC. We are talking about these two triangles, APB and ABC. अच्छा, P कहाँ पे है? P is here. P point is here. So this is the triangle APB. Okay, and this is the triangle ABC, पूरा triangle. Okay, these two triangles. So एक चीज तो मुझे मिल गई है, this angle is 90 degrees. So if you see carefully, ये जो लाइट ब्लू से मैंने जो शेड किया है ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, इसमें दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, एंड जो डार्क ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, हियर एंगल बी इज 90 डिग्रीज. सो दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 है कि नहीं? आर यू एबल टू सी द, अग्री कर रहे हो कि नहीं? ये एक छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री है एक एंगल, ठीक है, और एक जो ये बड़ा ट्राइंगल है हियर, इसमें भी 90 है. तो लेट्स राइट द नेम, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ABC, 90 डिग्रीज. ठीक है, अब दूसरा क्या लूं मैं? What should I take? What else should I take as same here in this triangle and the smaller triangle? तो क्या सेम दिख रहा है? Yes, correct Tisha, Aksh, correct. एंगल B कॉमन नहीं है. एंगल B कैसे कॉमन हो सकता है? एंगल A कॉमन है. एंगल A कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है, देखो A, तो एंगल A इज कॉमन एंगल. ठीक है, एंगल B कैसे हो सकता है? मैं बता दूं क्यों नहीं होगा एंगल B. सबसे पहली बात तो ये एंगल B जो है पूरा, ये बड़े ट्रायंगल का पार्ट है. छोटे ट्रायंगल में तो सिर्फ इतना सा एंगल है जो 90 भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ पार्ट, स्मॉल एंगल. तो हाउ कैन दिस B एंगल एंड दिस B एंगल बी सेम?
कैन नॉट बी. ओके, एंगल ए इज कॉमन. आप अगर ए को ध्यान से देखो तो ये जो ए का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स. ओके, सो नाउ यू गॉट द ट्राइंगल्स. सिमिलर मिल गया. अब सिमिलर मिलने के बाद तो आसान करना है. क्या करना है उसके बाद? तो रेशियो ढूंढना है. बस रेशियो लिख दो, वैल्यूज पुट कर दो, सम इज डन. Sir, and I am getting the value of BP in point. It may be. Check your answer behind. Okay, sir. So मैं लिख देता हूँ यहाँ पे APB is similar to ABC. Let's write the ratio. Test भी लिख देना यहाँ पे AA test. I told you in the beginning itself that 90% of the sums are solved by AA test. ठीक है? Put the values. Find the answer. You may get the value in decimal. AP is given as AB is given as 9. BC is 12. AC is 15. So here also there is AB. This is also 9. BB and AP. So first let us solve this ratio. I will get PB as 9 into 12 upon 15. 3 4s are 3 5s are 9 4s are 36 upon 5. That is 7.2. Correct. And then I will solve this. Or I can solve this also. मैं AP और 9/4 भी ले सकता हूँ. AP/9 and 9/4. वो ज़्यादा बेटर होगा. So AP is equals to 9 into 9/15. That is 81/15. 3 27s are 3 5s are. So I'm getting 5.4. ये कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? AB 781. ओके. तो स्टार्टिंग में जब आया ना कि हम लोग को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आइडेंटिफाई करने का था, उनमें कोई बड़ा नंबर देंगे वो लोग तो कैसे आइडेंटिफाई करने का? नहीं देंगे वो बड़ा नंबर आपको. अच्छा. और मतलब हाँ, नहीं, पहली बात तो नहीं देंगे. और दूसरी बात कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ द एंगल, ठीक है, तो आप समझ ही लो कि वो 90 होगा, क्योंकि और कोई एंगल पॉसिबल ही नहीं होता, ढूंढ ही नहीं सकते. अच्छा, ओके, तो थैंक यू. So I did AP/9 equals PB/12. हाँ, okay, no problem, you got the answer correct. So I'm getting as 3.6. No, you should get it same. 7.2/12. So AP equals 7.2 into 9/12. Let us shift the points. So this will become 72. Now 12 1s are 12 6s are 6 9s are 54/10. 5.4. Check your Sorry. calculation. I wrote 18. That was the mistake. किसी भी साइड की दो वैल्यूज नहीं हो सकती. इफ यू हैव अ रेशियो ना, तो दोनों रेशियो से सेम ही आंसर आएगा. ओके.
Yes, Abbas Ali. Sir, AP upon AB, it is how 12. Where is 12? Sir, you wrote 7.2 upon 12. Ah, it is 12 only. I have taken these two ratios here. Okay, sir, I took PB up AP and So 9 you have upon done this 12. means. Yes, sir. Right. Okay, sir. Understood. I hope all of you are done. So we can start with the next sum. We'll do again a simpler sum, question number 12. सिंपल दिख रहा होगा सम आपको. देखो बेसिक सा ट्रायंगल है where we are given parallel lines also. तो ज्यादा कोई मेहनत नहीं है. These two lines are parallel. This is given as x plus 1, x, 7, d, e, a, c, b and y. These two sides are also given as 14 and 8. So first you have to prove the triangle similar. Now I won't be telling you how to do that because you very well know. But make sure you write all the steps correctly. Once you have proved the triangle similar, then write the ratios. Then put the values, substitute the values. Values carefully substitute करना. See, AD is x, AB. AB मतलब ये पूरा है AB. मतलब x भी है और 8. It is x plus 8. DE is x plus 1. BC is y. AE is 7. And AC मतलब ये पूरा 14 plus 7, 21. Do till here first. Now, while comparing the ratios ना, first second ratio को compare मत करो, क्योंकि x और y दोनों variables है. Second और third ratio को भी compare मत करो. Again, x और y दोनों variables है. You won't get the answer. क्या करो? ये first और ये last ratio को compare करो. First and last. See, answer एकदम अच्छे से आएगा. All three ratios are same ना, आप किसको भी compare कर सकते हो. ठीक है? x4 मिल गया. अब y ढूंढने के लिए आप कौन सा भी रेशियो ले लो. एक बार x4 मिल गया, then there is no problem. Then I can take any ratio which I want. In the place of x, I will write 4.
These should be your answers. One last sum for the day. I hope this is done. Question number 10. We'll do question number 10, then we will call it a day. They have not given the unit in this question. So आप कुछ मत लिखो या units लिख दो ऐसे units. या कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा because they have not given the unit. Okay, let's do question number 10. सर उसमें दिया है 10th क्वेश्चन में यूनिट। 10th में नहीं, मैं 12th की बात कर रहा था, जो 12th का आंसर मिला था। अच्छा 12th में, ओके सॉरी। उसमें नहीं दिया। So this is the question and we have to prove the triangle similar. Which triangles? APQ and triangle ACB. ठीक है? They have given the values of sides. क्या value दी है? Let's name it in the diagram itself. AP is given as 4, PB is given as 13.5, AQ is given as 7 and QC is 3. ठीक है? अब how will I prove these two triangles similar? क्या आपको यहाँ पे AA test satisfied लग रहा है? Yes, you will get angle A as common angle. ठीक है? But is this line PQ and BC parallel to each other? No ways they are parallel. Arrows भी नहीं बनाया है, पर parallel है भी नहीं. ठीक है? अगर parallel नहीं है तो I cannot take corresponding angles. Okay. So for this, what should I do now? How should I prove the triangles similar? Sir, angle A is common. हाँ वो लिख दिया ना, एंगल ए इज कॉमन। और क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने अभी बताया कि आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइंस पैरेलल ही नहीं है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बन सकता। So we can try with ratio, and if we get some sides equal, then Yes, we will do ratios. यहाँ पे A टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, सेकंड एंगल पॉसिबल ही नहीं है, एक ही एंगल पॉसिबल है, तो अब A टेस्ट करेंगे और सॉरी A टेस्ट नहीं हो सकता, तो हम साइड्स के रेशियोज फाइंड करेंगे. वी विल सी द रेशियोज ऑफ द साइड्स. सो फर्स्ट रेशियो क्या होगा? AP अपॉन AC. ओके, व्हाट इज AP? 4. व्हाट इज AC? AC मतलब ये पूरा 7 plus 3, that is 4 upon 10, that is 2 upon 5. Okay, second ratio क्या होगा? Second ratio will be PQ and BC, but PQ और BC दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो उसको लिख के फायदा नहीं है. PQ BC both are unknown.
सो नेक्स्ट है AQ और AB, लास्ट रेशियो AQ अपॉन AB. AQ is 7 एंड AB मतलब ये पूरा, देखो 13.5 मत लिख देना, AB मतलब ये पूरा. सो 4 plus 13.5, that is 7 upon 17.5. that is अगर पॉइंट शिफ्ट करूँ तो 70 upon 175. करो कैंसिलेशन इसको. अगर आप इसको कैंसिल करोगे, पहले 7 से करोगे तो यू विल गेट 10 upon 25 and then 5 से करोगे तो 2 upon 5. You will get the ratios as 2 upon 5, 2 upon 5. Ratios same. मतलब दो साइड के रेशियो सेम मिले और एक एंगल सेम मिला. That means by SAS test. देखो बहुत टाइम के बाद ये पहला क्वेश्चन आया SAS टेस्ट वाला. Triangle APQ is similar to triangle ACB. ठीक है. What else we have to find? PQ. DC is given as 10. We have to find PQ. So ratio लिखना पड़ेगा यहाँ पे. AP upon AC, PQ upon BC, AQ upon AB. So AP is 4, AC is 10 equals PQ don't know, and BC is 10. So cross multiply, you will get PQ as 4 centimeter. ये मिल गया आंसर सेकेंड पार्ट का. This was the first part. Third part is also simple. You just have to find the areas of the triangle, ratio of the areas. Complete it. So this will be AP is ये 4 था और ये 10 था, so 2 upon 5 था. इसका आपको स्क्वायर करना है, so you will get the final answer as 4 upon 25. Okay, that's it for today. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, goodbye, take care, good night.